I am Neha Miklani. Today I am going to start the topic of law of supply. Before starting my topic, I just want to say that go through my previous video of meaning of supply so that you can easily understand what is the meaning of supply. And also go through my previous videos of demand because they are the interlinked videos. With the help of the demand, you can easily understand what is the supply. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. So, law of supply, before understanding the meaning of law of supply, just want to discuss what is supply. As I have already told you what is supply. Supply means the stock which is offered for the sale in the market at a particular price level. एक ऐसा स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने बनाया हुआ है उसको वो मार्केट में उतारता है बेचने के लिए एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे. Supply refers to the quantity of the commodity which producer or seller are willing to produce and offer for sale at a particular price in a given market at a particular period of time. एक ऐसा स्टॉक जो प्रोड्यूसर विलिंग होता है या सेलर विलिंग होता है प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे एट पर्टिकुलर टाइम पे और एट ए गिवन मार्केट में, उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई. सो देर आर 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सप्लाईज. सप्लाईज को समझने के लिए हमें 3 इसके एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. पहला एस्पेक्ट्स क्या है इसका? सप्लाई इज़ ए डिज़ायर्ड क्वांटिटी. जैसे डिमांड भी एक डिज़ायर से ही बनती है. व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड मीन्स द डिज़ायर टू हैव ए दैट थिंग. आपको वो डिज़ायर होनी चाहिए उस थिंग को बाय करने की. सप्लाई में भी वही चीज़ होती है. यू हैव ए डिज़ायर्ड टू sell that commodity. Next, supply is always explained with the reference to the price. जैसे डिमांड का रिलेशन प्राइस किसके साथ होता है प्रोडक्ट की, वैसे ही सप्लाई का रिलेशन भी उसके प्राइसेस के साथ ही होगा. प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से आपकी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी. थर्ड एस्पेक्ट टाइम ड्यूरिंग विच इट इज़ ऑफर्ड फॉर द सेल. थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ द टाइम. कि टाइम का आपको पता होना चाहिए. टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सप्लाई को उस पर्टिकुलर टाइम लेवल पे एट पर्टिकुलर प्राइस पे डिस्कस ही करेंगे. डिज़ायर में भी 3 टाइप या 4 टाइप 4 चीज़ें हम मेज़र करते हैं. फर्स्ट वन, यू हैव अ डिज़ायर टू बाय थिंग्स. Second one, you have a willingness to purchase that thing at a particular price level पे. And fourth one, you have ability to have that thing. You have that much of money to buy that particular thing at a particular time period at a particular type price level and in a particular market में. तो ऐसे ही सप्लाई में भी 3 एस्पेक्ट्स ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ द यू हैव ए डिज़ायर्ड. सेलर की वो डिज़ायर्ड होनी चाहिए, डिज़ायरनेस होनी चाहिए कि वो अपनी इस कमोडिटीज़ को या इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को वो सेल करना चाहता है. सेकंड, उसके पास वो ऑलवेज जो है वो हमेशा इस सप्लाई को प्राइसेस के साथ ही एक्सप्लेन करेगा. जैसे डिमांड का रिलेशन प्राइसेस के साथ होता है, सप्लाई का रिलेशन भी प्राइसेस के साथ ही होगा. थर्ड, टाइम पीरियड. ऐसी बात नहीं है कि हर एक चीज़ में एक पर्टिकुलर टाइम लेवल को ही हम कंसिडर करके चलते हैं. उस पर्टिकुलर टाइम लेवल पे कितनी सप्लाई होगी उस प्राइस लेवल पे, तो वो चीज़ें डिस्कस की जाती है. सो that is all about the supply. Now, before understanding the law of supply, firstly we have to understand what is the supply schedule and supply curve. As per in a demand, we also have discussed what is the demand schedule and demand curve. So in a supply, we also going to discuss what is the supply schedule and supply curve.
शेड्यूल का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी सप्लाई को एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व का मतलब क्या होता है, जब हम उस पर्टिकुलर सप्लाई को एक टेबल में शो करते हैं, कर्व की शेप में शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व। शेड्यूल मीन्स जब हम सप्लाई को एक टेबल पर्टिकुलर फॉर्मेट में पर्टिकुलर डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट सप्लाईज को शो करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई कर्व क्या होता है, जब हम उस सप्लाई को एक पर्टिकुलर कर्व की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सप्लाई कर्व। सो सप्लाई शेड्यूल शोज ए टैबुलर। टैबुलर मीन्स एक टेबल फॉर्म में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अ फ्लो ऑफ सप्लाई, it represent the different quantities of a product that is seller is willing to sell at a different price level of the product। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जब हम अपने टेबुलर फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है, डिफरेंट प्राइस लेवल पे क्या क्या सप्लाईज होगी। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम उस टेबल को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। सो सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं इनकी। जैसे कि डिमांड में भी डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व भी 2 टाइप्स के ही होते हैं। सप्लाई शेड्यूल हैव ए 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सेकेंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स जब हम सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर क्वांटिटी, सिंगल एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्टिकुलर सप्लाई में कर्व टेबल पे, मतलब हम सिर्फ एक बॉल पेन, सिर्फ एक सेलो के बॉल पेन की हम सप्लाई देखते हैं उसके प्राइस लेवल के साथ, तो वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या क्या होता है, जैसे हम सिलो के, मैक्सो रिफिल के, ग्रिपर्स के पेन्स को जब 3-4 जो कमोडिटी एक पर्टिकुलर सेम लेवल की कमोडिटी को, सेम लेवल की पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम डिफरेंट कंपनीज़ की प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जब हम शो करते हैं टेबल में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व। So for the better understanding, what is individual supply schedule and individual supply curve? Refers to a supply schedule that represent the different quantities of a product supplied by an individual seller at a different prices. इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर सप्लाई कमोडिटी की सप्लाई इसको डिफरेंट प्राइस लेवल पे एक टेबल की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल ली हुई है मिल्क की। प्राइस मिल्क के लिए 10 रुपये थी, 12 रुपये थी, 14 रुपये मिल्क की हुई, 16 रुपये हुई, तो सप्लाई कैसे कैसे रही। एक चीज़ आपने हमेशा ये ध्यान रखनी है, सप्लाई प्राइसेस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन चलता है। प्राइसेस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइसेस आपकी कम होती हैं, तो आपकी सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, तो उस तरीके से जब मैं इसको टेबल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है, आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। द सप्लाई कर्व इज शोइंग ए स्ट्रेट लाइन एंड एन अपवर्ड स्लोप। जब आपका सप्लाई कर्व एक पर्टिकुलर ग्राफ में जब रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि इसमें मैंने प्राइसेस यहाँ शो की है, क्वांटिटी यहाँ शो की है, और आपका सप्लाई कर्व बनाया गया है, तो वो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड की शेप में होगा। डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, बट आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो क्या चीज़ शो करता है, ये अपवर्ड शो क्या करता है, प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, प्राइसेस और बढ़ेगी, सप्लाई और बढ़ेगी, सप्लाई प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेगी, तो सप्लाई आपकी और बढ़ेगी। इसलिए आपका जो सप्लाई कर्व होता है वो स्लोपिंग अपवर्ड होता है, अपवर्ड स्लोप में होता है वो। ठीक है, इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लाइव वीडियो। तो हम डिस्कस करेंगे अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व।
इसमें सबसे हम शेड्यूल बनाएंगे। यहाँ पे हम लेते हैं प्राइसेस, यहाँ पे सप्लाई। जैसे इस साइड पे हम एक डिमांड लेते थे, अब हम क्या लेंगे, सप्लाई। हमने किसकी एग्जांपल ली है, मिल्क पर लीटर। ठीक है, मिल्की की प्राइसेस पहले 10 थी, तब तो उसकी सप्लाई 10 थी। मिल्की की प्राइसेस बढ़ गई, वो 12 पर लीटर हो गई, तो सप्लाई भी बढ़ा दी उन्होंने। हमने ये डिस्कस किया है, सप्लाई का प्राइसेस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। सप्लाई बढ़ेगी, सॉरी, प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइसेस आपकी कम होगी तो सप्लाई कम होगी। डिमांड में हमेशा इसका इन्वर्स रिलेशन चलता है, बट सप्लाई के साथ प्राइसेस का पॉजिटिव रिलेशन ही चलता है। ठीक है, तो सप्लाई, प्राइसेस बढ़ी, सप्लाई आपकी बढ़ गई। प्राइसेस फिर से बढ़ गई तो सप्लाई आपने फिर से बढ़ा दी। प्राइसेस फिर से बढ़ी, सप्लाई आपने फिर से बढ़ा दी। ठीक है, अब हम इसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते थे, अब हम लेंगे सप्लाई, यहाँ पे हम प्राइसेस लेंगे। ठीक है, तो हम इसको फॉर्म करेंगे 5 की बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो 10, 12, 14, 16 इस तरीके का आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लेंगे। 8 से शुरू कर लेते हैं। 8, 10, 12, 14, 16। यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है, तो हम ले लेंगे 5, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब 10 रुपये सप्लाई पे, 10 रुपये प्राइस पे 10 रुपये सप्लाई थी। ठीक है, तो ये आपका इस शेप में बना। ठीक है, 10 रुपये में 10 सप्लाई थी। प्राइसेस आपकी 12 रुपये हुई, सप्लाई आपकी 15 हो गई। ठीक है, प्राइसेस आपकी 14 हुई तो सप्लाई आपकी 20 हो गई। प्राइसेस आपकी 16 हुई, सप्लाई आपकी 25 हुई। इन सभी को पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये क्या बना हमारा, सप्लाई का। एंड इट इज़ ऑलवेज स्लोप अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये क्या चीज़ शो करता है, इट हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशन विद द प्राइस। क्या, नाउ सेकेंड इज अवर मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, जब हम एक ही मार्केट में नहीं, 2 या 3 या 4 मार्केट की सप्लाई को कंसीडर करके चलते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, इट रेफर्स टू द सप्लाई शेड्यूल दैट रिप्रेजेंट the different quantities of a product that all supplier in the market are willing to supply at a different prices. all supplier, बहुत सारे सप्लायर उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे क्वांटिटी मार्केट में उतार रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, प्राइसेस यहाँ लिए, यहाँ पे मैंने ए कंपनी ली है, बी कंपनी ली है, सी कंपनी ली है, और 100 रुपये प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई उतार रहे हैं उनको मैंने लिया है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ी है वो कितनी कितनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं उसको हमने लिया है, और जब हम इनको प्लस करके ज्वाइन करके लिखते हैं तो ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाता है। मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, के कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है और प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो मार्केट में सिर्फ फ़र्क इतना ही है। इंडिविजुअल में हम सिंगल सेलर की एग्जांपल लेते थे, मार्केट में हम जो है डिफरेंट सेलर्स की एग्जांपल लेंगे कि बहुत सारे सेलर्स उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे अपने प्रोडक्ट का स्टॉक कितना मार्केट में उतार रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब आप उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव वीडियो ऑल्सो। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या है, सबसे हम पहले कॉलम लेते हैं प्राइसेस का, उसके बाद
हम सप्लाई लेंगे, इंडिविजुअल सप्लाईज लेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेलर की। जैसे मैंने एग्जांपल में 3 सेलर्स लिए हैं, सेलर नंबर ए, सेलर बी, सेलर सी। फिर उसके बाद फिर हम लेंगे लास्ट कॉलम, अगर और ज़्यादा हुए तो डी, ई, एफ जो भी हो गए उनको हम लेंगे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे मार्केट सप्लाई। वो कैसे लिखना है, प्राइसेस हमारी थी 100 प्राइस में ए सेलर ने 750 क्वांटिटी निकाली, बी सेलर ने 500 की क्वांटिटी निकाली एंड सी सेलर ने 450 की क्वांटिटी निकाली। प्राइसेस जो है बढ़ गए, सॉरी 700 प्राइसेस थी, प्राइसेस जो है बढ़ गए 800 हो गए। प्राइसेस बढ़े, सप्लाई बढ़ा दी सबने। तो कैसे कैसे प्रोपोर्शन में बढ़ाई सबने सप्लाई, सॉरी प्राइसेस आपकी 1 थी, फिर 200 हो गई। फिर उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने जो है उतारे, इन्होंने 750 था, इन्होंने 800 कर दिया, इन्होंने 500 उतारी थी, फिर 650 उतार दी, और इन्होंने 450 थी। तो सबका अपना अपना तरीका है। फिर उसके बाद प्राइसेस आपकी बढ़ गई, 300 हो गई। फिर इन्होंने फिर से सप्लाई बढ़ा दी 900 की, इन्होंने 750 कर दी और इन्होंने 650 कर दी। प्राइसेस फिर से बढ़ गए, इन्होंने फिर से सप्लाई बढ़ा दी, सबने अपनी अपनी 700। अब मार्केट सप्लाई कैसे निकालना है, जितने भी आपके इंडिविजुअल सप्लाईज होते हैं उनको हम प्लस करके 750 प्लस 500 प्लस 450, वो जो आएगा वो आपका मार्केट सप्लाई। 800 600 प्लस 500 जो आएगा ये 900 750 प्लस 650, इसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा 1900 700 जो ऐड करके वैल्यू आएगी वो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। अब जैसे ये हमारी मार्केट सप्लाई आई है, अब हमने कर्व बनाना है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने प्राइस लिया, यहाँ पे हमने सप्लाई ली। प्राइसेस हमारी स्टिक है 100 200 300, 100 200 300, ये हमारी 400। ठीक है। अब हम इसके हिसाब से हमारा जो यहाँ पे प्रोपोर्शन लेंगे। ठीक है, सीधा 1600 से स्टार्ट करते हैं, 700 से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। 100 पे कितनी सप्लाई थी, 1700, तो ये तो बन गई। 200 पे 950, तो ये बीच का रास्ता। 300 पे कितनी है, 2300। ठीक है। 400 पे कितनी है, 2600। ये हमारा क्या बन जाता है, सप्लाई कर्व। आपका जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, बट जब हम इंडिविजुअल पे आ जाते हैं तो वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है। ठीक है। So this is all about our today topic. We have discussed what is individual supply schedule and individual supply curve, and what is market supply schedule and market supply curve. And I hope you will all understand what are these curves. So in our next video we are going to complete our law of supply topic. Thank you so much.